वेलकम टू नॉलेज मंडली। आज हम लेकर आए हैं बिल्कुल ताजा खबर। 12th की परीक्षाएं कैंसिल होने के बाद रिजल्ट की प्रोसेस अभी चल ही रही थी कि सीबीएसई ने जारी कर दिया एक और बड़ा नोटिस। अब 2021-22 के 10th 12th बैच की परीक्षाएं होंगी 2 बार, जिसमें हर बार 50-50% का सिलेबस होगा। सो लेट्स सी द ऑफिशियल नोटिस। Special scheme of assessment for board examination classes 10th and 12th for the session 2021-22। तो देखते हैं। तो इसमें तो सिर्फ यही बताया गया है कि पेंडेमिक के कारण बच्चों को कितनी परेशानियां झेलनी पड़ी थी, टीचर्स को कितनी परेशानियां झेलनी पड़ी थी। तो शुरू करते हैं कि क्या नई चीज हुई है और क्या हमारे काम की चीज है। स्पेशल स्कीम फॉर 2021-22 academic session to be divided into two terms with approximately 50% syllabus in each term. The syllabus for the academic session 2021-22 will be divided into two terms by following a systematic approach by looking into the interconnectivity of concepts and topics by the subject experts, and the board will conduct examinations at the end of each term on the basis of the bifurcated syllabus. This is done to increase the probability of having a board conducting classes 10th and 12th examinations at the end of the academic session. तो दोनों सेशन को का सिलेबस एक्सपर्ट्स सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स डिसाइड करेंगे एंड दीज एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड एट द एंड ऑफ ईच सेशन। सेकेंड पॉइंट है द सिलेबस फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन 2021-22 will be rationalized similar to that of the last academic session to be notified in July 2021 for academic transactions. However, school will follow the curriculum and syllabus released by the board wide curriculum number दिया हुआ है dated 31st March 2021. Schools will also use alternative academic calendar and inputs from the NCERT on transacting the curriculum. यानी कि सिलेबस की इंफॉर्मेशन अभी दी जाएगी, तब तक जो सिलेबस पहले से गिवन है उसे ही मानकर चले। सी पॉइंट efforts will be made to make internal assessment practical project work more credible and valid as per the guidelines and moderation policy to be announced by the board to ensure fair distribution of marks. Third point, details of curriculum transaction. Schools will continue teaching in distance mode till the authorities permit in-person mode of teaching in schools. यानी कि स्कूल ओपन करने का बिल्कुल नहीं कहा गया है। Classes 9th 10th internal assessment throughout the year irrespective of term 1 and 2nd would include the 3 periodic test, student enrichment, portfolio and practical works और स्पीकिंग लिसनिंग एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट वर्क। ये सारे इंक्लूड किए गए हैं इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स देने के लिए 9th और 10th के लिए। 11th और 12th की इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स कैसे जोड़े जाएंगे, किस किस के मार्क्स जोड़े जाएंगे थ्रू आउट द ईयर रिस्पेक्टिव ऑफ टर्म 1 एंड टर्म 2। टर्म 1 और टर्म 2 यूज किया गया है जो 2 बोर्ड एग्जाम अब होने वाले हैं उनके लिए। वुड इंक्लूड एंड ऑफ टॉपिक और यूनिट टेस्ट, एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज, प्रैक्टिकल्स, प्रोजेक्ट्स, ये सभी के बेसिस पे इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स जोड़े जाएंगे। Schools would create a student profile for all assessment undertaken over the year and retain the evidences in digital format. CBSE will facilitate the schools to upload marks of internal assessment on the CBSE IT platform. Guidelines for internal assessment for all subjects will also be released along with the rationalized term-wise divided syllabus for the session 2021-22. The board would also provide additional resources like sample assessments, question banks, teacher training, etc. for more reliable and valid internal assessment. कोशिश की गई है कि सबसे फेयर जो है इंटरनल मार्क्स जोड़े जाएं, वैलिड हो। अब टर्म 1 एग्जामिनेशन जो 2 पेपर होने वाले थे, तो पहले पेपर में क्या होगा, कैसे होगा, कितने मतलब वक्त टाइम का होगा, क्या पैटर्न चेंज हुआ एग्जामिनेशन का। फर्स्ट पॉइंट है एट द एंड ऑफ द फर्स्ट टर्म जो भी एग्जाम्स हो जाएंगे, जब हमारे हाफ ईयरली एग्जाम्स आते थे उस जगह पे क्या होगा, द बोर्ड विल ऑर्गेनाइज term first examination in a flexible schedule to be conducted between November-December 2021 with a window period of 4-8 weeks for schools situated in different parts of country and abroad. यानी कि कहीं ना कहीं हमें महीने बता दिए गए हैं कि कौन से मंथ्स में जो है
एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। नवंबर दिसंबर में एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा, जहां पे 4 से 8 हफ्ते हैं सीबीएसई को लगेंगे एग्जाम्स कंडक्ट कराने में। डेट्स फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी नोटिफाइड। अभी भी कोई डेट्स नहीं दी गई है एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने की। वो सारी चीजें पेंडेमिक को देखकर समझकर ही डेट निकाली जाएंगी। द क्वेश्चन पेपर विल हैव MCQ including case based MCQs and MCQs and assertion reasoning type। यानी कि सारा पेपर MCQ बेस्ड होने वाला है, जिसमें केस बेस्ड MCQ होंगे, assertion reasoning होगी और काफी सारे और भी MCQs होंगे, कंसेप्चुअल MCQs होंगे। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट विल बी 90 मिनट्स। जो समय है जो 12th क्लास के लिए 2021 में सोचा गया था या लोगों ने प्रिडिक्ट किया था, वो अब 2021-22 में लिया गया है 90 मिनट्स का। एंड इट विल कवर ओनली द रेशनलाइज्ड सिलेबस ऑफ टर्म 1 ओनली, यानी कि 50% सिलेबस इंक्लूड किया जाएगा टर्म 1 के लिए। Question papers will be sent by the CBSE to schools along with marking scheme। तो पेपर या तो स्कूल में होंगे या सेंटर्स में होंगे, जहां पर सीबीएसई पेपर भेज देगी। द एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ द एक्सटर्नल सेंटर सुपरिटेंडेंट्स एंड ऑब्जर्वर्स अपॉइंटेड बाय सीबीएसई। यानी कि बाहर से लोग आएंगे या फिर आपको सेंटर अपॉइंट किए जाएंगे। वो सारी चीजें पेंडेमिक को सोच समझ कर ही की जाएंगी। द रेस्पॉन्सेज ऑफ स्टूडेंट विल बी कैप्चर्ड ऑन OMR शीट्स। यानी कि जो OMR शीट्स थी जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूज की जाती थी, अब उसको सीबीएसई ने भी लागू कर दिया कि हम OMR शीट्स पे ही उनके रिस्पॉन्सेस लेंगे, विच आफ्टर स्कैनिंग में बी डायरेक्टली अपलोडेड एट सीबीएसई पोर्टल और अल्टरनेटिवली में बी इवेल्युएटेड एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड विल बी अपलोडेड बाय द स्कूल ऑन द वेरी सेम डे। मतलब उसी दिन जिस स्कूल ने एग्जाम्स है वो कंडक्ट कराए हैं, उसे सीबीएसई पोर्टल पर OMR शीट्स की स्कैनिंग करके भेज देनी है। The final direction in this regard will be conveyed to schools by the examination unit of the board। Marks of the term 1 examination will contribute to the फाइनल ओवरऑल स्कोर ऑफ स्टूडेंट्स। यानी कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि दोनों में से जो अच्छे मार्क्स आगे वही जोड़े जाएंगे, दोनों मार्क्स को इंक्लूड किया जाएगा। परसेंटेज उनका कितना कितना होगा वो अभी नहीं बताया गया है। फिफ्थ पॉइंट है टर्म 2 के लिए जो सेकंड पेपर होगा उसमें क्या होगा। पहले वाले में तो बता दिया गया है कि सारे एमसीक्यू बेस्ड होंगे, अब सेकंड पेपर में क्या होगा वो देखते हैं। एट द एंड ऑफ द सेकंड टर्म, सेकेंड टर्म के एंड के बाद, सेकेंड टर्म के असेसमेंट के बाद, द बोर्ड वुड ऑर्गेनाइज टर्म सेकेंड और ईयर एंड एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन द रेशनलाइज्ड सिलेबस ऑफ टर्म सेकेंड ओनली। अप्रोक्सीमेटली 50% अभी बोला जा रहा है इसमें। तो ये लास्ट पेपर होगा। दिस एग्जामिनेशन वुड बी हेल्ड अराउंड मार्च अप्रैल। यानी कि जो डेट जो मंथ यहाँ पे भी दिया हुआ है, एक अप्रोक्सीमेट टाइम बताया हुआ है कि मार्च अप्रैल के बीच में वो हो जाएगा कंडक्ट। द पेपर विल बी ऑफ 2 hours ड्यूरेशन। यानी कि जो पेपर होगा वो 2 घंटे का होगा। पहले 90 मिनट्स का था, अब 2 घंटे का होगा। एंड हैव क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट्स। केस बेस्ड भी होंगे इस बार, सिचुएशन बेस्ड भी होंगे, ओपन एंडेड होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, यानी कि सारे पूरा मिक्सचर होंगे, सारे टाइप के क्वेश्चंस होंगे। ओनली एमसीक्यूज नहीं होंगे, क्योंकि एमसीक्यू का जो है टर्म 1 में ले लिया गया है। In case the situation is not conducive for normal descriptive examination, a 90-minute MCQ based exam will be conducted at the end of term 2 also। यानी कि ये भी एक अल्टरनेटिव यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर सिचुएशन सही नहीं रही पेंडेमिक के कारण, तो हम फिर से 90 मिनट का एक एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम ले लेंगे। ये 2 hours का छोड़कर 90 मिनट्स का ले लेंगे, जैसे हमने टर्म 1 पे लिया था। मार्क्स ऑफ द टर्म टू एग्जामिनेशन वुड कंट्रीब्यूट टू द फाइनल ओवरऑल स्कोर। दोनों को मिक्स कर ही मार्क्स दिए जाएंगे। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक में अच्छा कर दिया दूसरे में बेकार कर लिया, दोनों के मार्क्स जोड़े जाएंगे। सिक्स्थ पॉइंट है असेसमेंट और एग्जामिनेशन एज पर डिफरेंट सिचुएशन। सारी कंडीशन बताई हुई है कि अगर ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, ऐसा हो गया तो क्या करेंगे। A, in case the situation of the pandemic improves and students are able to come to schools or centers for taking the examination। अगर ऐसा होता है कि जो पेंडेमिक की सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो जाती है, जो होनी भी चाहिए, तो स्टूडेंट्स अपने स्कूल्स और सेंटर्स में आ जाते हैं, तब क्या होगा। बोर्ड वुड कंडक्ट टर्म 1 एंड टर्म 2 एग्जामिनेशंस एट स्कूल सेंटर्स एंड द थ्योरी मार्क्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द 2 एग्जाम्स। अच्छा, मतलब कि
अगर सिचुएशन अच्छी हो जाती है तो दोनों को इक्वल इक्वल वेटेज दी जाएगी मार्क्स की, और स्कूल्स और सेंटर्स पे ही एग्जाम होगा। बी पॉइंट है, इन केस सिचुएशन ऐसी हो जाए ऑफ द पेंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल्स ड्यूरिंग नवंबर दिसंबर 2021, बट टर्म सेकंड एग्जाम्स आर हेल्ड एट स्कूल्स और सेंटर्स। यानी कि ऐसी सिचुएशन आ जाए जब नवंबर दिसंबर में पेंडेमिक की जो सिचुएशन है वो सही ना हो, तब क्या होगा, और जो टर्म टू है वो एग्जाम्स जो है वो कराए जा सके स्कूल्स और सेंटर्स में, मतलब मार्च अप्रैल तक सिचुएशन हैंडल हो जाए पर नवंबर दिसंबर तक कोई आशा ना हो सिचुएशन हैंडल होने की, तब क्या होगा, टर्म वन एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन वुड बी डन बाय द स्टूडेंट्स ऑनलाइन ऑफलाइन फ्रॉम होम। In this case, the weightage of this exam for the final score would be reduced and weightage of term 2 exams will be increased for declaration of final result. So CBSE ने पूरी कोशिश की है कि इस बार तो बिल्कुल फेयर यू हो सारा रिजल्ट, और जितने भी आपके क्वेश्चंस है क्वेरीज है उसका खुद ने उसे जवाब दे रखा है। इन केस द सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल्स ड्यूरिंग मार्च अप्रैल 2022, बट टर्म वन एग्जाम्स आर हेल्ड एट स्कूल्स और सेंटर्स। यानी कि नवंबर दिसंबर जो सिचुएशन सही और आपने टर्म वन है वो बिल्कुल फेयर तरीके से एग्जाम ले लिया हो स्कूल और सेंटर्स में, पर मार्च अप्रैल तक सिचुएशन दोबारा खराब हो जाए, टर्म टू दे ही ना पाओ, results would be based on the performance of students on term 1 MCQ based examination and internal assessments. The weightage of marks of term 1 examination conducted by the board will be increased to provide year end results of candidates. अगर आपने एक ही पेपर दिया है तो उसकी वेटेज बढ़ जाएगी और दूसरे की नहीं बढ़ेगी, मतलब दूसरे की घट जाएगी वेटेज, क्योंकि जो एग्जाम्स ऑनलाइन होंगे उनकी वेटेज घट जाएगी। डी, in case the situation of the pandemic forces complete closure of schools and board conducted term 1 and second exams are taken by the candidates from home in the session 2021-22. Results would be computed on the basis of the internal assessment, practical project work, and theory marks of term 1 and term 2 exams taken by the candidate from home in class 10th 12th, subject to the moderation or other measures to ensure validity एंड रिलायबिलिटी ऑफ द असेसमेंट। यानी कि अगर आपके पैंडेमिक के कारण जो है वो दोनों पेपर ही नहीं होते हैं, तब क्या होगा, इतिहास को फिर से दोहराया जाएगा और आपका जो रिजल्ट है वो इंटरनल असेसमेंट के बेस पे दिया जाएगा। यानी कि जितने इंपॉर्टेंट टर्म वन टर्म टू है उतने ही इंपॉर्टेंट इंटरनल असेसमेंट के जो मार्क्स हैं वो हैं उनको हमें उतनी ही, जैसे पिछली बार स्टूडेंट्स ने गलती की थी इंटरनल असेसमेंट को ऐसे हल्के में ले लिया था, वैसे हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि हो सकता है कि इस बार भी इंटरनल असेसमेंट के अकॉर्डिंग ही आपके मार्क्स जुड़ जाएं। In all the above cases, data analysis of marks of students will be undertaken to ensure the integrity of internal assessments and home-based exam. यानी कि सीबीएसई ने कोशिश की है कि सारे मार्क्स इस बार सारे स्टूडेंट्स हैं वो सेटिस्फाइड हो अपने मार्क्स से, और जो मार्क्स की जो प्रोसेस है वो ज्यादा से ज्यादा रिलायबल हो और फेयर हो। तो इतना ही इसमें दिया गया है। तो आपको सभी एग्जाम की तैयारी करनी है, कोई भी इंटरनल असेसमेंट नहीं, आपके लिए सारे बोर्ड्स होने चाहिए। जो गलती पिछली बार की थी स्टूडेंट्स ने वो इस बार नहीं दोहरानी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, एंड प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल नॉलेज मंडली।